Hello everyone. Students, we have finished the chapter that is metals and non-metals, and today I will be explaining some NCERT blueprint question answers and back page exercise question and answers. The very first question is, define the following terms: mineral, ore and gangue. What are minerals? Minerals are the natural materials in which the metal exist. The natural materials of the metal or metal compound which are found in the earth crust are called minerals. Ores, the minerals from which metal can be extracted profitably and conveniently are called ore. Gangue, the impurities which may get attached to the ore are called gangue. Okay, so the natural materials in which the metals or their compounds are found in the earth are called minerals, and those minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably are called ores, and the unwanted impurities like sand, rocky material, etc. in an ore are called gangue. Name two metals which are found in nature in the free state. फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स मिलते हैं? मेटल्स विच आर लीस्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज, एंड द मेटल्स विच आर लीस्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर Cu, Hg, Ag, Au and Pt. But copper and mercury are found in the compound form also, that is their sulfide ores. But the copper, the gold and platinum are never found in their compound form. They always found in nature in the form of their elemental state or free state. So answer will be gold and platinum. Next question is, what chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? Oxide से metal को निकालने के लिए कौन सा process use करते हैं? Reduction with the help of some reducing agents, and the reducing agents could be either highly reactive metals such as aluminium or carbon act as reducing agent. Example, ZnO. We can reduce this zinc oxide with the help of carbon. We get metal, that is zinc, along with carbon monoxide. Similarly, with the help of aluminium, we can also reduce the metal oxide. For example, Fe2O3, iron oxide, with aluminium we get iron from its oxide. So we can use some reducing agents such as carbon and some highly reactive metals such as calcium, aluminium, sodium, etc. This is the example of thermite reaction, where we can reduce the oxide of metal with the help of aluminium powder. Fine. The next question is, metal oxide of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. इनको जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ हीट किया. इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ पे होगी और कहाँ पे नहीं होगी? लेट्स सी. सिंस zinc is here, so no reaction will occur in this case. Magnesium with zinc oxide, magnesium is more reactive than zinc, so in this case displacement reaction will occur. Copper is less reactive than zinc, so no displacement reaction will occur here in this case, because copper is less reactive than zinc. Fine. Now second is magnesium oxide with zinc. Magnesium is highly reactive than zinc, or zinc is less reactive than magnesium oxide, so no displacement reaction will occur in this case. Magnesium with magnesium oxide, no reaction will occur. Copper with magnesium oxide, since copper is less reactive than magnesium, so here also no displacement reaction will occur. Copper oxide with zinc, now zinc is more reactive than copper, so it can displace copper from its oxide form. Fine. Magnesium with copper oxide, now again magnesium is more reactive than copper, so magnesium can displace copper from its oxide form, so displacement reaction will occur. Copper from copper oxide, no displacement reaction will occur. Fine. You can see the answer. Which metals do not corrode easily? कौन से मेटल्स का कोरोजन आसानी से नहीं हो सकता? वो मेटल्स का नहीं होगा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते.
कौन से मेटल्स हैं ऐसे जो रिएक्ट नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सब्सटेंसेस के साथ? दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स. ओके, एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर गोल्ड एंड प्लेटिनम. They do not corrode easily. Fine. What are alloys? Alloys are homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. For example, bronze. Bronze is an alloy of copper and tin. Fine. Next is, which of the following pairs will give displacement reactions? Displacement reactions, the reactions in which a highly reactive element can displace a less reactive metal from its salt solution. Now NaCl solution and copper metal. Copper is less reactive than sodium, so no reaction here. Aluminium and magnesium chloride. Aluminium is less reactive. K, reactivity series is K, Na, Ca, Mg, Al. So Mg is high reactive and aluminium is less reactive than Mg, so here also no displacement reaction will occur. FeSO4 solution with silver metal, no reaction as silver is least reactive. AgNO3 along with copper, here displacement reaction will occur because copper is more reactive than silver, so it can easily displace silver from its salt solution. Next is, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Option A, applying grease, applying paint, applying a coating of zinc and all of the above. अगर क्वेश्चन होता कि सिर्फ प्रिवेंट करना था तो ये सारा होता ऑल ऑफ द अबव, बट सूटेबल पूछा है और आयरन का फ्राइंग पैन मतलब आप उसको यूज़ करोगे फॉर कुकिंग. ठीक है, तो अगर आप ग्रीस अप्लाई करोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ग्रीस हट जाएगा और आयरन पे फिर से रस्ट आने लगेगा और वो क्या होगा, आपके लिए हार्मफुल होगा. सिमिलरली पेंट के साथ भी यही होगा. आप पेंट लगाओगे, पेंट मेल्ट होगा, खाने के साथ भी अटैच हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर भी जा सकता है और फिर वो हट भी जाएगा और फिर क्या होगा, फिर से आपका आयरन के ऊपर रस्ट हो सकता है. पर अगर आप गैल्वेनाइजेशन करोगे, दैट इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन मेटल और द थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, तो क्या होगा कि अगर वो जिंक की कोटिंग ब्रेक भी हो जाती है तो भी आयरन की रस्टिंग कभी नहीं होगी. तो द ऑप्शन विच इज़ मोर suitable is applying a coating of zinc. Next is, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. The compound is also soluble in water. The element is likely to be. देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है, आयनिक कंपाउंड्स का, और आयनिक कंपाउंड्स ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. सो कैल्शियम इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन, क्योंकि आप किसके साथ हीट कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन. तो कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो कंपाउंड कौन सा होगा, आयनिक, और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और आयनिक कंपाउंड ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज कैल्शियम. Next question, food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is costlier than tin, zinc has higher melting point than tin, zinc is less reactive than tin, zinc is more reactive than tin. देखो टिन क्या है, टिन जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल होता है. तो आप फूड केन्स को आसानी से किसके साथ कोट कर सकते हैं, आप टिन के साथ कोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जिंक के साथ करोगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो रिएक्ट कर सकता है. Fine. Next is, you are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? Assesses the usefulness of these tests in distinguish between metals and non-metals. हैमर से कैसे कर सकते हैं, आपको पता है मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग, पर नॉन मेटल्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम शीट्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी. फाइन. नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड बिकॉज मेटल्स आर malleable, while non metals are non malleable. Next, when metals are connected into circuit using a battery, a bulb, wires and a switch, करंट कहाँ से पास करेगा, करंट किस केस में पास करेगा, मेटल्स में, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो बल्ब ग्लो करेगा इन केस ऑफ मेटल्स और बल्ब ग्लो नहीं करेगा इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, बिकॉज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
Next is assess the usefulness of these tests in distinguish between metals and non-metals. Because of malleability, metals can be casted into sheets. ये इसकी यूजफुलनेस होगी मेटल्स की. दूसरा, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो उनको हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल केबल्स में और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम एल्यूमिनियम और कॉपर वायर को यूज़ करते हैं. What are amphoteric oxides? Give two example of amphoteric oxides. Oxides which can react with acid as well as with base to give salt and water are known as amphoteric oxides. Example of amphoteric oxides are Al2O3 and ZNO. Here are reaction. Aluminium oxide can react with acid, that is hydrochloric acid, to give salt and water, and it can also react with the base, that is sodium hydroxide, again to give salt and water. So this Al2O3 is amphoteric oxide. Again ZNO is reacting with HCl, hydrochloric acid, to give salt and water, and here with the base to give salt and water. So ZNO is also an example of amphoteric oxide. Name two metals which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not. ऐसे दो मेटल्स का एग्जाम्पल देना है जो क्या कर सकते हैं, एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. आपको पता है कि मेटल्स जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होंगे वो सारे मेटल्स हाइड्रोजन को कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है. तो आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं. ये सारे मेटल्स क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. फाइन. एंड मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज एनोड. एनोड पे हम क्या लेते थे, इम्प्योर मेटल विद अटैच्ड इम्प्योरिटीज, एंड एट कैथोड हम क्या लेते थे, प्योर मेटल का स्ट्रिप लेते थे. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था, जिस मेटल की हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हम यूज़ करते थे एज एन इलेक्ट्रोलाइट. सो कैथोड प्योर मेटल, एनोड इम्प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. Next is Piyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure. What will be the action of gas on dry litmus paper, moist paper, and write a balanced chemical equation for the reaction taking place. आप अपनी NCERT बुक में डायग्राम देख सकते हो इस क्वेश्चन का. बैक पेज एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, आपकी NCERT बुक में मिलेगा आपको. डायग्राम देखना. देखो सल्फ़र क्या है, एक सल्फ़र है एक नॉन मेटल, और इसकी जो ऑक्साइड होगी, नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं. ठीक है, एसिडिक होंगी तो उनका फ़र्क क्या होगा, वो लिटमस पेपर को चेंज करेंगे. कौन से लिटमस पेपर को चेंज करेंगे, वो एसिड्स जो होते हैं वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को इनटू रेड लिटमस पेपर. ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एक्वस सॉल्यूशन चाहिए होता है. एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स कैन टर्न एक्वस सॉल्यूशन चाहिए होता है, तभी वो एसिड्स जो होते हैं अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते या बेसिस अपना बेसिक बिहेवियर शो करेंगे. ठीक है, तो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो एक्शन. मॉइस्ट अगर होगा मतलब कि वो उस पर क्या है, वाटर प्रेजेंट है उसमें, तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया लिटमस पेपर पे. तो क्या होगा, उस एक्वस जो होगा, जो गीला पेपर होगा उस पर क्या होगा, वेट जो लिटमस पेपर होगा वो चेंज हो जाएगा, एंड वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में. ठीक है, ब्लू वाला इसमें चेंज हो जाएगा रेड में. रिएक्शंस क्या होंगी, सल्फर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिड्स रिलीज होता है विच इज सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज H2SO3. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आयरन को हम कैसे रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग एट्सेट्रा, और बाय एलॉइंग. ठीक है. What type of oxides are found when non-metals combine with oxygen? Non-metals जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बन सकती हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बन सकती हैं. और जब बेसिस कंबाइन करते हैं तो बेसिस के साथ कौन कौन सी ऑक्साइड बन सकती हैं, मेटल्स कंबाइन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स बनती हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनती हैं. फाइन. सो द रिएक्शन एसिडिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड
सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये मेटल की जो ऑक्साइड, ये नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है ये कैसी है, एसिडिक और न्यूट्रल। आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हो H2O, और आप एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO, इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट इज गिव रीजंस, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इनको हम ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेलेबल मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो इनको हम डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, प्लेटिनम भी लीस्ट है, गोल्ड भी लीस्ट है और सिल्वर भी थोड़ा बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, तो इनका कोरोजन आसानी से नहीं होता। तो और इनका लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस होते हैं मेटल्स, शाइनी होते हैं, तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इन मेटल्स को यूज़ करते हैं टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दीज आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दीज आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज दे आर लस्ट्रस, देयर सरफेसेस शाइनी। सोडियम, प्लेटिनम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, क्योंकि ये मेटल्स जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे वो इतनी ज़्यादा, ये जो रिएक्शन होती है इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज़्यादा विग्रस होती है कि जो हाइड्रोजन गैस बनेगी आफ्टर रिएक्टिंग विद मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस, दैट इज़ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है वो फायर कैच कर सकती है, और इस एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए वी स्टोर दीज मेटल्स अंडर ऑयल। एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल yet it is used to make utensils for cooking। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर आ जाती है विच इज़ ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और उसके आने के बाद एल्यूमिनियम इनर्ट हो जाता है, वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है, फिर उसका फर्दर कोई कोरोजन नहीं होता, ठीक है, और वो किसी भी चीज़ के साथ फिर रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। See, aluminium forms a non-reactive layer of aluminium oxide on its surface. This layer prevents aluminium to react with other substances. That's why aluminium is used to make cooking utensils. Fine. Next is carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction. हमने पढ़ा था कि हम मेटल के जो कार्बोनेट ओर होते हैं या फिर सल्फाइड ओर्स होते हैं, सबसे पहले उनको उनकी ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर उनका रिडक्शन कराते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम डायरेक्टली ओर से उसका मेटल निकाल लें, ऐसा क्यों नहीं करते हम, क्योंकि ये ईजियर होता है। इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल देन डायरेक्ट वी कैन रिड्यूस द ओर ऑफ मेटल इनटू इट्स नेचुरल फॉर्म। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कराते हैं, उसके बाद उसका रिडक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these source substances are effective in cleaning vessels. अब देखो tarnished copper vessel, that is copper का corroded copper। अब देखो corroded जो copper होगा, corroded copper होगा तो copper पे किस किस की लेयर आती है जब corrosion हो जाता है copper का? कॉपर पे दो लेयर आ सकती है, या तो वो CuO बन सकता है या फिर वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, दैट इज CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। अब देखो ये मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो बेसिक नेचर में होने की वजह से, और जो ये टैमरिंड जूस है, लेमन जूस है, इनमें क्या होता है, एसिड, और एसिड किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके उसको क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे, और जो हमारा कॉपर, जो कोरोडेड कॉपर था, टार्निश्ड कॉपर था, वो फिर से शाइन करने लगेगा, ठीक है। द सोर्स सब्सटेंसेस such as lemon or tamarind juice contain acids. These acids dissolve the coating of copper oxide or basic copper carbonate present on the surface of tarnished copper vessels. क्योंकि ये क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और ये सोर्स सब्सटेंसेस में क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड बेस के साथ, उस बेस की कोटिंग के साथ रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व कर लेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, और जो हमारा मेटल है द वेजल्स एंड मेक दैम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन। फिर से कॉपर के जो वेजल्स हैं वो अपने नेचुरल जो ब्राउन कलर होता है उसमें फिर से आके शाइन करने लगेगा।